السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وایسنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ پچھلی آیت بھی یہی تھی نا، شرک پر چل رہا ہے۔ یہ آیت ہی مکی صورت ہے۔ 3 چیزوں پر جو توجہ دی گئی ہے، وحدانیت اللہ کی، رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یوم آخرت پر۔ یوم آخرت یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت، ان کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اب تو اللہ پر بہتان باندھ رہی، اللہ ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بہت سے شرکا بھی ہیں، یہ ان کا ظن ہے۔ ظن بولے تو کیا؟ گمان، خیال، ہاں وہم بھی ہو سکتا ہے، گمان، ان کا خیال ایسا ہے۔ تو یہ جو اب ان کا موقف ایسا ہے کہ یہ کنٹینشن ان کا ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ ڈائٹیز دوسرے بھی ہیں، دوسرے بھی ڈیلیکیٹڈ ہیں، دوسروں کو بھی پاور ہے۔ تو یہ بات جب ان کو کھل جائے گی روز محشر معلوم ہو جاتا ہے اللہ صرف ایک ہے، اس کا عرش ہے، اس کی عدالت قائم ہو گئی ہے، ساری خلقت جمع ہے وہاں پر، اب فیصلے کے منتظر ہیں۔ اب کیا حال ہوگا ان کا، کیا کیفیت ہوگی، کیا گزرے گی ان کے دل پر، کیا ہوائیاں اڑتے ہوں گے ان کے چہرے پر، کیا حال ہوگا ان کا؟ یہ بات ہے۔ جو لوگ اللہ پر آج بہتان باندھتے ہیں روز قیامت، اس وقت ان کا کیا گمان ہے، اس کے متعلق کیا گمان ہے، اور وہ جب پیش آ جائے گی تو کیا حال ہوگا ان کا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کرنے والا ہے۔ آگے کیا دی گئی ہے، وما، اور کیا، ظنو، خیال، الذین، وہ لوگ جو، یفترون، مضارع کا صیغہ ہے، یا آ گیا تو پہلے کیا ہوا، وہ پہلا صیغہ مضارع کا، یتان کا پہلا صیغہ، یفترون، افطرا کرتے ہیں۔ اردو میں بولتے ہیں افطرا پردازی، بہتان باندھنا، کسی کے اوپر جھوٹ گھڑنے کو، دل سے گھڑنے کو کیا بولتے ہیں؟ افطرا پردازی۔ یہاں بھی افطرا ہی ہے، ہمیں ایک پردازی ایڈ کرتے ہیں۔ افطرا باندھ رہے ہیں، افطرا گڑتے ہیں، یعنی جھوٹ بہتان گڑتے ہی، اللہ، اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ ہے وہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس۔ اب وہاں تو کیا ہوگا اس وقت؟ اب یہ بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یہ اسلوب ہے عربی کا، یہ جو آج کر رہے ہیں آخر کار روز قیامت جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو وہاں کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، اس دن بھی، روز قیامت بھی، وہ تو عدل و انصاف کا دن ہوگا، ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ، بے شک، لذو فضل، ذو، یہ لا کیا ہے؟ لام تاکید ہے۔ ذو بولے تو کیا؟ ذو فضل، عزت والا، عزت فضل والا۔ ذو بولے تو والا بول کو، ذو، ذا، زی، یہ تینوں اس میں بھی آتا ہے۔ یہ را بھی حالت کئی کو چینج ہوتی ہے بولے تو، کبھی فعل آ جائے، کبھی عامل حروف آ جاتا ہے، فی آ جاتا ہے، ان آ جاتا ہے، لا آ جاتا ہے، یہ سب جو آ گئے جو عمل کرتی ہیں آگے کے ورڈ پر تو وہ جر میں جاتا ہے۔ جر بولے تو اسے زیر دے دی جاتی ہے، زو، زا، زی، یہ جو بھی آئے مطلب ایک ہی ہے، والا بول کو، والا،
वाला वाला। जुल इज्जत हमें कैसा जुल्फिकार। अच्छा, जुल्फिकार हमारे पास नाम रखना होता है, क्या मतलब है? फिखार काला फखर वाला यानी इफ्तिखार, इफ्तिखार भी रखा जाता है ना। जुल्फिकार बोले तो फिकार वाला यानी इज्जत वाला, इज्जत माप बोलने के वास्ते, इज्जत वाला वाला। और भी कई वर्ड्स जू के आती हमारे पास, उर्दू में आती। जुल्किफ्ल भी आया है नहीं, किफालत करने वाला, किफालत वाला। वाला का मतलब ये, हाँ जू लजू, ये ला लामे ताकीद। जरूर बा जरूर अल्लाह तो फजल वाला ही है। हाँ, अल्लाह फजल करने वाला ही है, हमेशा अपने बंदों पर बड़ा शफीक, बड़ा मेहरबान, निहायत ही रहम वाला। हम पहले ही बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा रहम करने वाला, निहायत मेहरबान। उसकी सिफात ही सिफाती जाती सिफात भी जो है वो रहम और फजल के ही हैं। फजल करने वाला है अलन्नास, बाई लार्ज, बाई एंड लार्ज, सब पर रहम ही करने वाला है अल्लाह। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह इतना फजल करता है, इतना रहम और करम करने वाला, लेकिन ये लोग शुक्र नहीं करते, शुक्र गुजारी नहीं करते। इन तशक्कुर का इनमें कोई मादा है ही नहीं। ये एक और मतलब में भी ये है कि क़ियामत के वक्त ये जो हालत होगी इन लोगों की, और यहाँ जो भी इन्होंने कमाया होगा, ये जो गलत काम कर रहे हैं, इस तरह पर्दाजी कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हैं, ये जो काफिर मुशरिकीन का ये रद्द अमल है, ये इनका क्या हाल होगा वहां पर। और जुल फजल इस बात में भी है, इस मफहूम में भी है कि अल्लाह ने सारा बंदोबस्त कर दिया है। अल्लाह ने एकदम लोगों को दुनिया में भेज दिया, पैदा कर दिया, उनकी खबरगिरी कोई नहीं की, उनको रहनुमाई नहीं दिखाई, उनको उनके हाल पर, जैसा कि अगियात का ये है। मेरा किसी से मुबाहिसा हुआ था, जो एक बहुत आला तबके की है, ये रहती है और संस्कृत की बड़ी आलिम, बड़ी जानने वाली। उनका ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह बस पैदा कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। फेंड देमसेल्व्स, फेंड योरसेल्फ, देख लो तुम्हारी राह, देख लो तुम्हारा रास्ता, देख लो तुम्हारा असबाब, तुम खुद पैदा कर लो, ऐसा छोड़ दिया है। लोगों की खबरगिरी नहीं की, पैदा तो किया है, लेकिन खबरगिरी का, उनकी रहनुमाई का, उनके बाद के सारे वसाइल असबाब फराहम करने का कुछ भी ये नहीं किया। वो एक गाना भी है उनका, ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಿವ कैलाश ಸೇರಿಕೊಂಡ। जाको बैठ गया, जाको कैलाश में बैठ गया। कैलाश में बोलती, वो अर्श को बोलती, हमारे वक्तों में अर्श नहीं है। जाकर बैठ गया, अब उन्हें कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। सेरिकोंडा जाको बैठ गया, अब उन्हें कोई जिम्मेदारी इंसानों की नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने पैदा किया, यहाँ भी वसाइल दिए, यहाँ भी जिंदगी गुजर बसर करने के सारे असबाब दिए, और आखिरत में भी तुम्हारी अच्छाई हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम जन्नत के हकदार बनो, इसका भी सामान पैदा कर दिया। कहाँ से? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अव्वलीन पैगंबर नहीं कहा जाता। अव्वलीन पैगंबर किसको कहा जाता है? पैगंबर अव्वलीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या? सलाम को आदम कहा जाता है। इब्राहिम नहीं, नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। यानी नूह पैगंबरों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, वो कब से शुरू हुआ? नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुन नास, पैगंबरों के बाप, सारे पैगंबरों के बाप, और इमामुन नास का लक़ब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का लक़ब है। ये सारे अलक़ब दिए हैं एक बार बोलो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुन नास, इमाम उन्नास, सारे लोगों के इमामुन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? आखिर ज़मा, इमामुल अनबिया। अभी इमामुल अनबिया, इमामुल अनबिया, इमामुन नास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया अल्लाह ने। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा खिताब है। ये खिताबत इमामुल अनबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कि एक प्रैक्टिकल ये भी हो गया, इसका एक ज़हूर प्रैक्टिकल भी हो गया। कब? मेराज के वो वक्त मेराज के वक्त हाँ, सारे अनबिया पूरे की अंबिया को इमामत करके नमाज पढ़ाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो पढ़ाई मस्जिद कैसा अक्सर पढ़ाया, वो
अल्लाह को मालूम हुआ, लेकिन पढ़ाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, और इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब हो गया इमामुल अनबिया। नूह अलैहिस्सलाम अव्वलीन पैगंबर कहलाते। नूह अलैहिस्सलाम से पैगंबरों की आदम सानी, ये आदम सानी, आदम में सानी, हाँ आदम में सानी उन्हें कहा जाता है, लेकिन पैगंबरों में पहला पैगंबर किसको ट्रीट किया जाता है मालूम? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। पहला हजरत पे नूह अलैहिस्सलाम और पैगंबरे अव्वलीन करको उनका नाम दिया गया है। वैसे आदम अलैहिस्सलाम भी थे, आदम अलैहिस्सलाम को भी शुमार किया जाता है, लेकिन अव्वलीन पैगंबर का नाम जब आता है, फहरिस्त जब आती है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। तो अल्लाह ने सारे पैगंबर भेजे, वहां से भेजे, जब से इंसानियत शुरू हुई है, बनी हुई इंसानी शुरू हुई, तब से अल्लाह ने उनकी रहनुमाई का सामान पैदा कर दिया। कैसा रहना, कैसा जीना, यहाँ क्या करे, क्या तुम्हारे अमल रहे तो आखिरत तुम्हारी सुधरती है, दोजख से बच जाती, जन्नत के अहल हो जाती, क्या अमाल की जरूरत है। किताबें नाजिल कर दी, पैगंबरों को नाजिल कर दिया, रसूल कितने आए हैं, सवा लाख रसूल की बात आती है, 6 का ही जिक्र है कुरान में, 6 का ही जिक्र है। किस किस का है? नूह अलैहिस्सलाम से लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, मूसा, लूत अलैहिस्सलाम, सालेह लूत अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, सलाम ईसा चंद ये मूसा नहीं, ईसा। हाँ 6 पैगंबरों का ही जिक्र आ रहा है, 6 पैगंबर है। 25 बोलते ना। यूसुफ, 25 का वो शाद शाद जिक्र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वाज़ेह तौर पर कि ये 6 पैगंबरों का जिक्र है, वाज़ेह तौर पर जो किया गया है। अब यहाँ भी आ रहा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी आ रहा है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी आ रहा है। ये अब आगे के जो 2 रुकू आते हैं ना, वो अनबिया और रसूल पर है, उसमें 2 पैगंबरों का आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम का कम जिक्र आ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। अब इसके बाद की, इसके बरअक्स सूरत क्या है, सूरा हूद आ रही है, सूरा हूद है, उसमें उल्टा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज्यादा आएगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसके उल्टा है, एक का ज्यादा आएगा, एक का कम आएगा। उसके आगे भी पैगंबरों का सिलसिला, आप सारे वाकयात आएंगे, पैगंबरों के सारे वाकयात, उनके क्या क्या किए, कैसा किए, उन लोगों का क्या हुआ। ये सब इसलिए कि मक्की दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ हो रही है, वो ये बताना अल्लाह का मकसूद है कि आए नबी, आप अकेले पैगंबर नहीं हो जिनके साथ ये लोगों का ऐसा दुरुस्त रवैया है, इतना संगीन रवैया है ना, ये आपके अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हर पैगंबर के साथ हो चुका है। तो ये बताने के वास्ते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के वास्ते, और एक ये इसके वास्ते भी, क्या है, गाइडेंस के वास्ते भी सारे रसूलों का जिक्र आ रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, अल्लाह फजल करने वाला है लोगों पर, आम लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन ये लोग समझते नहीं। ला यशकुरुन, शुक्र अदा नहीं करते और इसे लेते नहीं है, जो भी अल्लाह तालीमात दे रहा है, पैगंबरों को भेज रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको झुठलाती, अल्लाह पर बहतान बांधती, रसूलों की तकजीब करती, आखिरत को झुठलाती, ये सब अपने आप पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं पाँव रख के। अल्लाह पर, अल्लाह तो जुल्म नहीं करता, अल्लाह लोगों पर, अल्लाह का लोगों पर फजल ही फजल है। जो लोग अल्लाह पर बहतान बांधते हैं, रोज क़यामत के बारे में उनका क्या हाल होगा, क्या गुमान है उनका, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह इंसानों के साथ फजल का मामला करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, समझते भी नहीं कि अल्लाह इतना सब कुछ किया है, ये किताब हमारे लिए है, ये तालीमात हमारे लिए है, रसूल हमारे लिए आए हैं। जैसा कि अगियार बोलती हैं, पैदा किया छोड़ दिया, अल्लाह वैसा तो नहीं छोड़ा, सबकी खबरगिरी का, दुनिया में भी आखिरत में भी सारे असबाब अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं। ये हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है नहीं? हम भी क्या करते हैं, हमें कह लेते हैं क्या, कुरान है, कुरान हमारे वास्ते आया है और उसमें तालीमात हैं, वो तालीमात किसके लिए हैं, पढ़ना समझना, समझते नहीं, ऐसा ही पढ़ती, क्या मालूम होता है, कितने कुरान पढ़ देते हैं, कुछ भी मालूम नहीं होता अल्लाह ने क्या दिया है, क्या चाहता है अल्लाह, किस तरह की जिंदगी हम गुजारे तो हमारी आखिरत अच्छी होती है, वो सब कुछ मनकुल है। नहीं पढ़े तो क्या फायदा, हमारा क्या फायदा हुआ।
अल्लाह भेजा है हमारे फायदे के लिए कि पढ़ो, इस तरह की जिंदगी गुजारो और तुम्हारी आखिरत संवारो। ये दुनिया कोई रहने वाली नहीं है, आखिरत संवारने के लिए ये वक्त दिया गया है। ये इम्तिहान है, इम्तिहान का पर्चा भी लिख कर दिया। मुनकिर नकीर आकर क्या पूछेंगे वो भी बता दिया। मन रब्बु का, मन दीनु का, ये 3 क्वेश्चन भी बता दिए। तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन कौन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, सब कुछ बता दिया क्वेश्चन क्या होंगे। अब ये क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी जिंदगी गुजारो तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, वरना क्या होगा वहां का हाल भी बता दिया। कोई सस्पेंस में नहीं रखा कि एकाएक अचानक पकड़ेगा अल्लाह, सब कुछ दे दिया, यहाँ पैदा कर दिया, माल दौलत भी दे दिया, खर्च करने का तरीका नहीं बताया, जिंदगी दे दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताया। अब आया इंसान एकदम पकड़े गया। अब जैसा पुलिस पकड़ता है ना, एकदम पकड़ता है, कान की छुपा खड़ा रहता है, एकदम पकड़ लेता है, चालान काट देता है। हाँ, अल्लाह क्या करे, पहले बंदोबस्त कर दिया, सवालात बता दिया, जिंदगी गुजारने के तरीके बता दिया। ऐसा करे तो ऐसा, ऐसा नहीं करे तो ये पादाश होगी, ये भुगतोगे, ये भी बता दिया। कोई जुल्म नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म नहीं है, बता दिया ना, ऐसा करना है, ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, ना करने से उसका ये क्या भुगतोगे तुम, वो भी बता दिया। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है, वो कोई एकाएक पकड़ने वाला नहीं, सारा सब कुछ बता कर, सब कुछ समझा कर अल्लाह ने यहाँ भेजा है। सारे असबाब भी मुहैया किए हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसा गुजरना है। इसके बावजूद अगर तुम नहीं इसका फायदा उठाते तो तुम नाशुक्र बंदे। तुम इन लइन शकर तुम लाजीदन्नकुम लइन कफर तुम अजाबी लशदीद, कुफ्र करोगे, मेरी बातों को, मेरी तालीमत को नहीं मानोगे तो अजाबी, मेरा अजाब बहुत शदीद है। आगे आओगे, वहां भुगतोगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए।